Good morning, students. So today we are going to discuss the lambda functions following with the classes. ठीक है, तो we'll see a introductory part of the classes और फिर उसके बाद अपन inheritance, encapsulation और ये जितने भी properties होती हैं object oriented programming की that we are going to discuss in the coming lectures. Fine. So today we are going to discuss a very new topic which is known as a lambda function. It is also one kind of function. In the lambda function, it is also one kind of function. It takes any number of arguments within one expression. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स के लैम्डा फंक्शन भी एक काइंड ऑफ इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फंक्शन और ये क्या करता है कि कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है एक ही एक्सप्रेशन के अंदर. ठीक है, अभी हम लोगों ने जो फंक्शन डिस्कस किया था उसके अंदर क्या था कि वी हैव टू डिफाइन इट. ठीक है, वी हैव टू डिफाइन इट, वी हैव टू डिक्लेयर इट और उसके बाद वी हैव टू दैट फंक्शन रिटर्न सम काइंड ऑफ वैल्यू. लेकिन लैम्डा एक अनदर काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन इट इज एंड इट विल रिटर्न इट विल टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आल्सो एंड इट विल रिटर्न द वैल्यूज with only one expression. So let's see one example, one simple example which showing the usage of lambda function. So I'm taking here one x variable और लैम्डा को लिखने का तरीका है लैम्डा लिख देते हैं हम. जैसे हम लैम्डा लिख देंगे इट विल टर्न्स इनटू ब्लू कलर. ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए कोलन. सो दैट मीन्स कि लैम्डा एक फंक्शन है और उसका नाम है ए और मैंने यहाँ पे कोलन लिख दिया और इसके बाद मैं यहाँ पे a प्लस 10 लिख दूंगा और देन आफ्टर दैट आई विल जस्ट प्रिंट x 5. तो अब ये प्रोग्राम क्या करेगा कि x बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि लैम्डा फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी, जो भी इसका एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये स्टोर करेगा. तो अभी मैंने यहाँ पे x के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास किया है वो 5 किया है, तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ a की आर्ग्यूमेंट लिया है जिसका नाम है a. ठीक है, तो लैम्डा लिखने का तरीका है लैम्डा लिखेंगे a कोलन a प्लस 5. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो 1 है and the name of the argument is a, and after executing this a plus 4 whatever the value I will be feeding or plug into the a, it will store to the variable x. Fine. So let's see what will be the output. So output will be 5 plus 10 15. So let's see what will be the output. Yes, so here is the output is a plus 10. So what does this function does is it will take this value, take this argument and plug into the 5 or plug into the variable a. So now the a value is 5 and it will execute this expression 5 plus 10 is 15 and the result is stored in x. So in this way we can use the lambda function. By this is the program of using a lambda function using the lambda function with one argument. Fine. So here we can change the argument also. Let's suppose I'll pass 3 value. So let's see what will be the output. It's 13. So whatever the value I am feeding as an argument, it it stores in the variable a, and after that it will plus it with the 10. Now let's suppose I change this is to 23. So here our output will be 26. So 23 plus 3, it's 26. So in this way we can use the lambda by using one lambda argument. Sorry, one argument. Now we will see usage of lambda function using two arguments. So how we can use the lambda function by using two arguments. So now let's suppose again I am taking the variable x and here I'll write lambda और इसके बाद मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल लिया लेट्स सपोज s, नॉट s, आई टेक m स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया n. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं बिकॉज आई एम डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने यहाँ पे m और n लिया. नाउ आई एम टेकिंग टू आर्ग्यूमेंट्स दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग m एंड n.
In the previous example I have taken one argument, that's why I have written a. So अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन होगा m asterisk n. So what it does, it will multiply both the arguments. So whatever the value I am feeding to this expression, it will return the value, return the result of this expression. So here the expression is m into n, so it will return. So what it does, it will return the value of m into n. So what I have to do, I have to just passing the values of x now. So now let's suppose I have passes 7 into, sorry, not I don't there is no requirement to write the operator here. 7 into 7, so 7 sevens is 49. So here we can see that now the answer is 7 into 7. So whatever the value I'll be returning it, whatever the functions, whatever the arguments value I'll be feeding in this, it will show me the result accordingly. So यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए 3 और 8 करता हूँ तो आंसर विल बी 24. Similarly I can also use here minus also. अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 3 माइनस 8 करता हूँ तो आंसर विल बी -5. और मैं यहाँ पे चाहूँ तो डिवीजन भी यूज़ कर सकता हूँ, मॉडुलस भी यूज़ कर सकता हूँ. तो नाउ लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 67 और 3. So here the modulus is 1 because when modulus में क्या होता है, modulus takes the remainder value. Fine. So when I am dividing 67 with 3, it will take 3 to the 6, 3 to the 6, 66, 22. 3 22s are 66 and the remainder is 1. So that's why it will take the value 1 because modulus will take the remainders value. Fine. और अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा. लेट्स सी. तो आंसर विल बी आई थिंक 22. So here we can see the answer is 22.33. Fine. So in this way we can pass the two arguments also here. So we have seen the example of lambda usage of lambda by using one argument with two arguments. Fine. Now we can make a we'll see the usage of lambda function using three variables or three arguments. बेसिकली इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, इसका क्यों यूज है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैम्डा फंक्शन इज दैट suppose whether if I have to use the lambda function inside any kind of function, so there is no need to nested function, there is no need to write the nested function जो कि explicitly लिखा जाएगा. इसलिए मैंने explicitly क्या, इस lambda function को मैं अलग से लिख के और अपना काम जो है, जो मेरा गोल है, उसको अचीव कर सकता हूँ. ठीक है. So that will not affect the final result of the that parent function. So suppose I have created one function, inside that function I have to create a one explicit function जिसका कोई इफेक्ट नहीं हो मेरे पेरेंट फंक्शन पे. तो इन दैट केस और इन दैट सिनेरियो आई कैन यूज द लैम्डा फंक्शन. फाइन. सो हियर आई हैव टेकन द अनदर एग्जांपल इन विच आई एम यूजिंग थ्री वेरिएबल्स. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैम्डा एंड अगेन ए बी एंड सी. नाउ आई हैव टेकन अ न्यू काइंड ऑफ वेरिएबल्स ए बी एंड सी. और उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन कर देता हूँ a इंटू बी इंटू सी. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट और यहाँ पे x और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर देता हूँ. लेट सपोज 3,3,3. तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ द क्यूब. ठीक है. तो 3 का क्यूब होता है 27. तो इस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं. फाइन. तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द लैम्डा फंक्शन बाय यूजिंग द थ्री आर्गुमेंट्स. तो मैंने अभी जो आपको बताया कि हम फंक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. सो इन द नेक्स्ट प्रोग्राम वी विल सी यूसेज ऑफ लैम्डा फंक्शन
इन द फंक्शन। ठीक है, किस तरीके से हम फंक्शन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। फंक्शन डेफिनेशन कर देता हूं मैं इसको। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा डेफ और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया x और इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर दिया n, यहाँ मैंने लगा दिया कोलन। अब मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, लैम्डा लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और लैम्डा के अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a कोलन। अब मुझे क्या करना है, a इंटू n। तो इसका बेसिकली क्या मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, और जिसका नाम है x, और इसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ n। ठीक है, उसके बाद मैं एक लैम्डा फंक्शन यूज कर रहा हूँ और जो भी मैं वैल्यू n के अंदर पास करूंगा वो a से मल्टीप्लाई होके वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब इसका हम आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो नाउ लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ x और इसके अंदर मैं वैल्यू पास करता हूँ 2 और इधर मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू y और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट y। सॉरी, अभी n की वैल्यू तो पुट ही नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। नाउ लेट सपोज दिस 11, तो इट विल बिकम 22। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने xn लिखा है, मतलब ये जो n आर्ग्यूमेंट है वो n आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है, वो 2 है। ठीक है, इस और उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू को y में स्टोर किया। y वेरिएबल के अंदर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ 11। तो बेसिकली जो ये 11 है इट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ a जो हो जाएगी वो 11 हो जाएगी, 11 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22। अब अगर मैं यहाँ पे 3 पास करूँगा तो ये इट विल बिकम 33। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ a है वो इस आर्ग्यूमेंट से पास हो रही है। a आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ से पास हो रही है जब मैं y के अंदर वैल्यू पास कर रहा हूँ, और n की जो वैल्यू है वो यहाँ से पास होगी, n आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से पास होगी जब मैं x के अंदर पैरामीटर सेट करूँ। तो इन दिस वे वी कैन यूज द लैम्डा फंक्शन इन द फंक्शन डेफिनेशन ऑल्सो। So basically, the use of the lambda function is there. Why we use the lambda function? I'll just write it down here. We use the lambda function when anonymous means when there is no requirement of that function afterwards. So it is an anonymous function is required for a short period of time. So for the short period of time we can use the lambda function. The lambda function is basically an anonymous function. So anonymous means is unknown. Fine, origin is anonymous. So basically it is not known to anyone. It is एक तरह से हम कह सकते हैं कि खाली हमने उसको फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने उसको यूज़ किया है। एक अननोन पार्ट ऑफ फंक्शन है, हमने पूरा फंक्शन नहीं बनाया, हमने पूरी फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, हमने सिंपल एक एक्सप्रेशन को यूज़ करके लैम्डा फंक्शन का अपना काम करके उसे ख़त्म कर। सो कई प्रोग्राम्स में जहाँ पे हमें फंक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है, और विद इन द फंक्शंस ऑल्सो वी हैव टू
वी हैव सम काइंड ऑफ फीचर, एक कोई ऐसी हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, एक ऐसी कोई हमें एक फंक्शन टाइप की एक चीज़ मिल जाए जो कुछ रिटर्न कर दे वैल्यू. सो इन दैट केस लैम्डा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So in this way we can use the lambda. Fine. So by this we end up with the lambda part. फंक्शन हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने डेटा टाइप्स देख लिए, क्या क्या होते हैं, इसका बेसिक पार्ट पाइथन का समझ लिया. नाउ वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पाइथन. एज वी ऑल नो, Python is also a, I'll just write it here. Python is an object oriented programming language, which means there is a classes and objects. Almost everything in Python is an object. Fine. So with its property and the method. So object has what do you mean by object? Object is a thing which has a property and methods, its own methods and properties. And what do you mean by the classes? Classes is nothing but the blueprint of the creating object. So classes is nothing but the blueprint for creating ऑब्जेक्ट्स. अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज मैं बात करता हूँ कार की. तो कार बेसिकली एक क्लास हो गया, और मैं कौन सा मॉडल उसकी यूज़ कर रहा हूँ वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. उसी तरीके फ्रूट एक क्लास हो गया, और कौन से फ्रूट के बारे में मैं बात करूँगा वो एक उसका ऑब्जेक्ट हो गया. तो बेसिकली क्लासेस रिप्रेजेंट करता है एज अ ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो ये हम लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना होगा. तो वैसे भी आप लोगों ने प्लस प्लस सी पढ़ी है, यू नो वेरी वेल व्हाट डू मीन बाय क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. सो देयर इज़ नो नीड फॉर द detailed explanation or detailed discussion in this class. So we are just directly dive into the classes, how to create the classes by using Python. तो हम लोग वही क्लास लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल इस तरीके से क्लास लिखेंगे, और मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ x equals to 5. So in this way we can create the class. ठीक है. यहाँ पे हम लोग एक क्लास क्रिएट किए जिसका नाम है जिसका नाम है s. ठीक है. मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है s, और मैंने उसमें एक वैल्यू इंसर्ट की है, एक प्रॉपर्टी है उसकी विच इज़ नेम्ड एज x. ठीक है. अब उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी इसको मैं यूज़ करूँगा बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट. सो नाउ वी यूज़ बाय यूजिंग द क्लास नेम माई s वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट. तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा यहाँ पे p, और मैं यहाँ पे एक क्लास लिख दूंगा. सो दिस इज़ माई क्लास, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट s डॉट x. ठीक है. तो अब ये बेसिकली क्या करेगा, मैंने यहाँ पे क्लास, ये प्रोग्राम क्या बता रहा है, मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है. ठीक है. इसकी एक प्रॉपर्टी है विच इज़ नोन एज x इक्वल्स टू 5. ठीक है. अब इसी प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया p, और यहाँ पर मैंने इस क्लास को कॉल कर लिया. ठीक है. इस क्लास को कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट s डॉट x कर दिया. तो दैट मीन्स के जो भी वैल्यू यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी में पास की हुई है, x में जो पास की हुई है वो प्रिंट होके आ जाएगी. ठीक है. तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. और क्लास को लिखने का तरीका यही है, क्लास लिखूंगा मैं यहाँ पे, उसका क्लास नेम और कोलन लिख दूंगा, और फिर उसको मैं एज अ मेथड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेथड सामने आ जाएगा. So now let's run this program and let's see what will be the output. So here we can see the output is 5. तो automatically I'm calling this class, और मैंने यहाँ पे क्लास को कॉल कर लिया और यहाँ पे इसको मैंने यूज़ कर लिया. ठीक है. So it is a very simplest form of the class. इस तरीके की क्लास हम यूज़ नहीं करेंगे.
To understand the meaning of the classes, we have to understand the built-in function, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक built-in function बनाना पड़ेगा, और that built-in function we use in the Python. Built-in function which we use in the Python is nothing but init function, और init को लिखने का तरीका है so this is my init function which we are going to use in creating the class. तो ये डबल सेमीकोलन, फिर यहाँ init लिखूंगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन, फिर डबल फंक्शन, सॉरी डबल अंडरस्कोर. So in this way we can create the init function. All the classes have the function called init function. तो जो भी classes में जब भी class बनाऊंगा तो मैं इस init function को use करूंगा, which always execute when the class is being initiated. तो बेसिकली ये init function क्या इनिशिएट करने के लिए, जब भी मैं क्लास को इनिशिएट करूंगा, क्रिएट करूंगा, तो मैं इस init function को यूज़ करूंगा to assign the value of the object property and other operations that are necessary to do when the object is being created. तो जब भी ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूंगा और जब भी उनकी प्रॉपर्टीज़ को मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो क्लास को मुझे इनिशिएट करना पड़ेगा, और क्लास को इनिशिएट करने के लिए मैं इनिट फंक्शन का काम लूँगा. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी क्लास बनाने जा रहा हूँ विच इज़ नोन एज क्लास विच इज़ नोन एज पर्सन के नाम की मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा. फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है, मतलब इनिट जो भी फंक्शन है उसको मुझे सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनिट एंड डबल स्मॉल ब्रैकेट एंड डबल अगेन अंडरस्कोर, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्फ. अब ये सेल्फ क्या होता है ये मैं अभी आपको लोगों को बताऊँगा थोड़ी देर में. नेम एंड एज. तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक यहाँ पे क्लास बनाई है जिसका नाम है पर्सन, और इसके अंदर मैंने एक इनिट फंक्शन डाला है, क्योंकि इसको इनिशिएट करना है तो इनिट फंक्शन डालना पड़ेगा. तो इनिट फंक्शन डालने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्फ, उसके बाद नेम एंड एज. तो बेसिकली जब भी मैं कोई इनके क्लासेस की जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी इसके जो भी आर्ग्यूमेंट्स मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ उसको एक्सेस करने के लिए सेल्फ का काम आता है. तो अभी मैं आप लोगों को और बताऊंगा कि सेल्फ बेसिकली जो है इस फंक्शन का पैरामीटर है. ठीक है. ये एक पैरामीटर है, इसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं. तो जो भी क्लासेस के जो भी मैं वेरिएबल्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कौन कौन से वेरिएबल ले रहा हूँ, नेम और एज. तो इन नेम और एज के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए सेल्फ जो है वो काम में आता है. तो बेसिकली सेल्फ इज़ वन ऑफ द पैरामीटर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है इनिट फंक्शन में. मुझे इसको लिखना पड़ेगा हर बार और इसको यूज़ करना पड़ेगा मेरे को. तो वो किस तरीके से यूज़ होगा मैं बताता हूँ आपको. अब जैसे मान लीजिए मुझे नेम को एक्सेस करना है, तो नेम को एक्सेस करने के लिए मुझे सेल्फ डॉट नेम लिखना पड़ेगा. यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम. तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा, सेल्फ पैरामीटर यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने जो इस वेरिएबल है उसको एक्सेस करना है नेम को, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया और इक्वल्स टू नेम. तो बेसिकली क्या करेगा कि ये जो भी नेम मैं यहाँ पे डालूंगा वो सेल्फ डॉट नेम के अंदर सेव हो जाएगा. ठीक है. और उसी तरीके से मैं एज लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज. तो यहाँ पे जो भी एज मैं डालूंगा वो सेल्फ के अंदर सेल्फ डॉट एज वेरिएबल के नाम पे स्टोर हो जाएगी. ठीक है. सो इन दिस वे माई फंक्शन इज क्रिएटेड. ठीक है. और मेरा माई क्लास इज क्रिएटेड. तो मेरी क्लास क्रिएट हो गई है. अब मैं एक वेरिएबल लूँगा यहाँ पे पी, और उसके बाद मैं इस क्लास को जो है कॉल करूँगा. तो मेरा p इज़ नथिंग बट माई ऑब्जेक्ट. ठीक है. और मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सन अगेन. तो मैंने यहाँ पे क्लास को कॉल किया, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आर्गुमेंट पास कर दूँगा. नाउ लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा नाम रमेश, और उसकी एज मैंने यहाँ पे लिख दी 21. ठीक है. अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है. प्रिंट करने के लिए कैसे होगा ये, p डॉट नेम, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहा हूँ वही मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी वो जाके रिटर्न होगा, उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा. और मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट p डॉट एज.
ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे माई दिस प्रोग्राम स्मॉल प्रोग्राम ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द क्लास, सो आई हैव क्रिएटेड द क्लास विद द नेम पर्सन। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है डेफ। उसको लिखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिट फंक्शन बनाना पड़ेगा। इनिट फंक्शन इज बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, जो भी क्लास में क्रिएट करूंगा तो मुझे क्लास को इनिशिएट करने के लिए इनिट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो इनिट को लिखने का तरीका, क्लास को लिखने का तरीका है क्लास, क्लास नेम एंड द कोलन। उसके बाद इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे डबल डेफ लिखूंगा क्योंकि फंक्शन है इनिट फंक्शन, और उसके बाद उसको लिखने का तरीका है डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ। सेल्फ बेसिकली एक पैरामीटर है जो कि इनिट में होता है बाय डिफॉल्ट। तो जब भी मैं जो भी वेरिएबल मुझे यहाँ पे एक्सेस करने पड़ेंगे, चाहे वो नेम है, तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं, नेम और एज। तो इनको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल्फ डॉट नेम लिखूंगा इक्वल्स टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। तो जो भी मैं यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट करूँगा और क्लास को कॉल करूँगा और उसके अंदर जब भी मैं आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर सेव हो जाएंगे, नेम और एज के अंदर। और वो किससे कनेक्टेड है, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज से। तो बेसिकली जो भी मैं नाम यहाँ पे और एज उसकी जो भी कंफर्म कर रहा हूँ वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पी, और यहाँ पे मैंने पर्सन लिखा, पैरामीटर्स पास कर दिए। अब इन पैरामीटर्स को ऑब्जेक्ट किस तरीके से रिटर्न करेगा, पी डॉट नेम एंड पी डॉट एज के फॉर्म में, ठीक है। सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। सो इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ एरर हियर। इनिट जो है every time it is showing a, actually it is a double underscore. ओके 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 ओके, आई गॉट इट आई गॉट इट। मैंने बिल्कुल गलत लिख दिया। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे डबल अंडरस्कोर एंड यहाँ पे डबल अंडरस्कोर। स्मॉल ब्रैकेट तो इधर आ ही गया, तो मैंने यहाँ पे बिना बात के स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया था। सो दैट इज अ इनवैलिड सिंटैक्स नाउ अगेन। सो हियर वी कैन सी दैट द आउटपुट इज रमेश एंड 21, फाइन। सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट एज मैनी एज ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को अंदर क्लास के अंदर पैरामीटर्स पास करेंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको हम कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने C++ के अंदर रूप्स के कंसेप्ट पढ़े होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। यू नो द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड यू नो द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंस है, और मेरे ख्याल से C++ में भी शायद इनिट फंक्शन यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी वही इनिट फंक्शन यूज़ होगा। और वेरी सिंपल फॉर्मेट, यहाँ ना कोई सिंटेक्स का ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, आराम से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई सिंटेक्स की यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आपको सेमी कोलन लगाना है और इस तरीके से लगाना है, और इस तरीके से आप इसको सिंपल वे में आप लिख सकते हैं। बिल्कुल इंटरप्रिटेशन इसका बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। सो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत आएगी। अब आपको इसको करने के लिए इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्लियर हो जाएगा, फाइन। तो अब हम अपने ऑब्जेक्ट का मेथड भी बना सकते हैं, ठीक है। अब वो मेथड बनाने के लिए फिर से हम एक नया प्रोग्राम लिखते हैं, और जो मैं क्लास है, अपनी क्लास को तो मैं एज इट इज़ ले लेता हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो मैं दोबारा क्लास यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ f नाम से, FUN।
और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो माय नेम इज, और यहाँ पे कंकटेनेशन कर देता हूँ मैं सेल्फ डॉट नेम। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन ले रहे हैं और उसके अंदर मैंने यहाँ पे सेल्फ आर्ग्यूमेंट को पास किया है, और फंक्शन को यूज करके ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी कंटेन्स द मेथड, मतलब फंक्शन मींस मेथड, सो मेथड इज ऑब्जेक्ट्स, मेथड इन ऑब्जेक्ट्स आर फंक्शन दैट बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट। तो मेथड्स इन ऑब्जेक्ट मतलब मेथड्स के अंदर जो भी मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, दैट आर द फंक्शन दैट बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक मेथड क्रिएट करा है इस पर्सन क्लास का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेथड क्रिएट किया है। तो जब भी हम ऊप्स की बात करते हैं तो ऊप्स में फंक्शन इज नथिंग बट द मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ नहीं लिखा, तो सेल्फ डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा ये चीज़। और अब मुझे क्या करना है, फिर से मेरे को वही अपना जो प्रिंट वाला ऑप्शन है उसको लिखना है। और सॉरी, मैं यहाँ पे अब वैल्यू को पास कराऊंगा, मतलब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेम नेम से। और अब मेरे को क्या करना है, p डॉट फन, फाइन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट में मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। अभी इससे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था कि इस वेरिएबल को, डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस किया था, जो भी पैरामीटर्स पास किए थे उसको एक्सेस किया था। लेकिन अब मैंने क्या करा है, मैंने पैरामीटर ना बना के अब मैंने यहाँ पे क्या फंक्शन कर दिया, और फंक्शन को डायरेक्ट पास कर दिया ऑब्जेक्ट में। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। So here we can see that the we are getting an error, person object has no attribute fun। तो person जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है फन। तो वो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ हम मिसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन ले लिया, इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट पास करा दिया सेल्फ, और यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट नेम लिख दिया है, फाइन। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, उसका नाम लिया पर्सन क्लास का, और उसके अंदर पैरामीटर्स पास कर दिए, एंड अगेन p डॉट फन। अब इट इज़ सेइंग दैट पर्सन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो पर्सन ऑब्जेक्ट है, इट इज़ नॉट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट फन। तो मतलब फन इसके अंदर एट्रीब्यूट नहीं है। तो वो हम लोगों को एक बार चीज़ देखनी पड़ेगी कि फन भी इसके अंदर एट्रीब्यूट, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। इंडेंटेशन, एक्चुअली व्हाई इट इज सेइंग इट इज नॉट अ एट्रीब्यूट, बिकॉज मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं किया था। ये जो क्लास का एट्रीब्यूट जब होने जा रहा है, क्लास पर्सन का ही एट्रीब्यूट होने जा रहा है ये फंक्शन, तो मुझे उसके अंदर ही लिखना पड़ेगा, तभी तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर वो मैं इसके अंदर ही नहीं लिखूंगा, मतलब मैं इसके ब्लॉक के अंदर ही नहीं लिखूंगा, मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, तो ये एट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज शोइंग ओनली द नेम। अगर मान लीजिए मुझे एज भी लेना है, अगर मुझे यहाँ पे एज भी लेना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेल्फ डॉट एज। तो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। So it will not concatenate the
तो इंटीजर और जो स्ट्रिंग होते हैं वो कंकैटिनेट नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस, एंड अब मेरे को अगर मान लीजिए एक ही स्टेटमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस, उसके बाद स्ट्रिंग एंड माई एज इज दिस, देन हियर प्लस। नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज। So it is not able to concatenate the integer and string, but I have shown you how to concatenate the string and the integer। ठीक है, आप लोग वो यूज़ कीजिए मेथड। और मुझे यहाँ पे बेसिकली मुझे जो आउटपुट चाहिए वो ये चाहिए कि माई नेम इज़ रमेश एंड माई एज इज़ 21 इन द सेम एक्सप्रेशन, इन द सिंगल एक्सप्रेशन। तो वो हम किस तरीके से कंकैटिनेट करते हैं एज स्ट्रिंग को और जो इंटीजर वैल्यू को है वो आप मुझे बताइएगा किस तरीके से वो किया जाता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। ठीक है, so in this way we can create the object classes and objects and we can use it। और इसी तरीके से by using del command we can delete the object also। ठीक है, so in this way we can do the thing। so that is the simple example and the simple demo of the classes। introduction हो गया हमारा। so in the next lecture we are going to see the inheritance, the property of the classes। ठीक है, तो इनहेरिटेंस किस तरीके से किया जाता है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस अलाउ अस टू डिफाइन अ क्लास दैट इनहेरिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द अनदर क्लास। तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या करता है कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं वो हम उस क्लास के साथ उस क्लास से ले सकते हैं। ठीक है, यू नो द बेटर डेफिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ इसके अंदर एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है, यू ऑल नो दैट। तो मैं आप लोगों को सिंपल सा एक इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा किस तरीके से इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर एंड कीप लर्निंग एंड आई होप कि आप लोग असाइनमेंट कर रहे होंगे। सो कीप डूइंग योर असाइनमेंट ऑल्सो। मैंने आप लोगों को बता ही दिया किस तरीके से करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बनवा रखी है फाइल vikas_assignment1, इसी तरीके से आपको IPYNB फाइल बनानी है एंड यू हैव टू राइट योर असाइनमेंट्स। ठीक है, so thank you till then and keep learning।